के सामने आ गया, वो चीजें हमारे कब्जे में आई कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, बड़ी मंजिल हमने पार की और लोग हैं आजाद मुल्क है। मैं आपसे आज जो जिसका असली नाम ये होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता नहीं दी बाहरी, लेकिन आपने दी, और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है मैं उस हैसियत का और उसके को हटा। लेकिन आजादी भी अजीब अजीब जिम्मेदारियां लाती है और बोझे लाती है। मैं एक सियासी चीज नहीं है। आजादी जब एक चीज पोशाक पहनती है जब उससे जनता को फायदा हो। आजकल हमारे ये आर्थिक और इक्तिसादी सवाल बहुत काफी जमा Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends, and when the soul of a nation, long suppressed, finds utterance. It is fitting that at this solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people, and to the still larger cause of humanity. At the dawn of history, India started on her unending quest, and trackless centuries are filled with her striving and the grandeur of her successes and her failures. Through good and ill fortune alike, she has never lost sight of that quest or forgotten the ideals which gave her strength. We end today a period of ill fortune, and India discovers herself again. The achievement we celebrate today is but a step, an opening of opportunity to the greater triumphs and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? Freedom and power bring responsibility. That responsibility rests upon this assembly, a sovereign body representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. That future is not one of ease or resting, but of incessant striving, so that we might fulfill the pledges we have so often taken, and the one we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. And so we have to labor and to work hard to give reality to our dreams. Those dreams are for India, but they are also for the world, for all the nations and peoples are too closely knit together today for any one of them to imagine that it can live apart. Peace has been said to be indivisible, so is freedom, so is prosperity now, and so also is disaster in this one world that can no longer be split into isolated fragments. To the people of India, whose representatives we are, we make appeal to join us with faith and confidence
in this great adventure. This is no time for petty and destructive criticism, no time for ill will or blaming others. We have to build the noble mansion of free India where all her children may dwell. वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन।
जलदीप बनाए बच्चों के लिए, और सवाल यह है कि बच्चे उसे पसंद करते हैं कि नहीं। ये थोड़ी कि मैं पसंद करता हूँ कि नहीं है? मेरा पसंद करना न करने का कोई माने नहीं है। बच्चे करें तो अच्छा है, बच्चे नहीं करें तो निकम्मा है। लेकिन उसमें क्या खास उसका फिल्म का हिस्सा है जो ज्यादा पसंद आया? मुझे वो वाला अच्छा लगा हिस्सा जहाँ दुबे बस को चलाया। अच्छा, तो दुबे बस को चलाता है तुम्हें पसंद आया? अच्छा, हाँ? जब वो बोलता है टेबल पर आके खड़ा होकर बोलता है मम्मी और डैडी आंखें रंगी, वो मेरे को सीन बहुत पसंद है। अच्छा, बात यह है कि बच्चों के फिल्म और मुल्कों में और देशों में अब अच्छे अच्छे बनने लगे हैं, और जो बड़ों का फिल्म होता है कितना ही अच्छा हो, वो मुमकिन है बच्चों के लायक ना हो। बड़ों को पसंद हो, बच्चों को ना हो, ऊब जाए सो जाए उसको देखते देखते। इसलिए बच्चों के लिए अलग फिल्म बनानी चाहिए। अब ये जलदीप ये एक करीब करीब पहली कोशिश है बच्चों के लिए फिल्म बनाने की, और भी बनेंगे हम आशा करते हैं, उससे भी अच्छे होंगे। लेकिन हमेशा याद रखो, बच्चे का फिल्म का इम्तिहान लिया जाता है कि बच्चों को पसंद है कि नहीं। बड़ों से पूछने कोई माने नहीं। तो खैर हम इस नतीजे पे पहुंचे ना कि बच्चों की फिल्म बनने चाहिए हमारे देश में, हा? और दूसरी बात यह कि अच्छे फिल्म होने चाहिए, क्योंकि दूसरी दर्जे की चीज कोई हम पसंद नहीं करते अपने देश की, अव्वल दर्जे की होनी चाहिए। आपने पहले कभी किसी पिक्चर में काम किया है? अब कर रहा हूं कि नहीं पिक्चर? फर्ज करो तुमने चिड़ियाओं का कहा था, कितनी चिड़ियाएं हैं दुनिया में, हजारों लाखों किस्म की। कितनी चिड़ियाओं को तुम पहचानते हो? उनकी आवाज सुन के बता दो, देखो ये कोयल बोली या ये बोला ये वो बोला। हाँ, बहुत पहचाना था। फर्ज करो बताओ कि एक हम फिल्म बनाए गंगा का, गंगा जी का फिल्म बनाए, तो उसमें कितनी बातें हम बता सकते हैं। दूसरी बात लो, आसमान पे तुम इतने तारों को देखते हो, लखूखा तारे, इन तारों की कहानियां हैं, इन तारों के नाम हैं। एक दफे तुम पहचान लो वो तारे का नाम ये है, तो दोस्त हो जाता है तुम्हारा। हाँ, जैसे तुम सड़क पे चलो, बहुत भीड़ चल रही है, तुम किसी को जानो नहीं, तो भीड़ तो है लेकिन तुम अकेले हो, और तुम एकदम से देखो तुम्हारा दोस्त जा रहा है तो फौरन देखो वो दोस्त आया। हाँ? इसी तरह से ये बड़े तारों का मजमा है ऊपर, अच्छा सुंदर लगता है, लेकिन जहां तुम उन्हें पहचानने लगो उनमें से कुछ को तो दोस्त हो जाते हैं। खैर, तो अच्छा हो अगर बच्चों के अच्छे अच्छे फिल्म बने और बच्चे देखें। ये बाहर से फिल्म आते हैं, अक्सर अमेरिका से आते हैं और जगह से, अच्छे होते हैं, बात बड़े अच्छे होते हैं। बाद ऐसे होते हैं सिवाय लड़ाई झगड़े के कुछ नहीं होते। मुझे नहीं अच्छे लगते लड़ाई झगड़े, काफी वही लड़ाई झगड़ा है उसको और फिल्म पे भी दिखाना। हमें तो अब एक कोशिश करनी है कि अपना देश ऐसा बनाए और दुनिया ऐसा बनाए जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, कम से कम हो, लोग मिल के रहें, काम करें, अपना भी फायदा हो, देश का भी हो। तो लड़ाई झगड़े करने से कोई होता नहीं। क्या राय है तुम्हारी? हाँ, संजय की राय है, कुछ कभी कभी स्याही फेंक दी जाए तो अच्छा है। भाइयों और बहनों, आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया, वो चीजें हमारे कब्जे में आईं, दिल हमारा खुश होता है, एक मंजिल पर हम पहुंचे। ये हम जानते हैं कि हमारा सफर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत मंजिलें बाकी हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी मंजिल हमने पार की और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है। मैं आपसे आज जो बोल रहा हूं
एक हैसियत, एक सरकारी हैसियत मुझे मिली है जिसका असली नाम यह होना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान की जनता का प्रथम सेवक हूं। इस हैसियत से मैं आपसे बोल रहा हूं। वो हैसियत मुझे किसी शख्स ने नहीं दी बाहरी, लेकिन आपने दी, और जब तक आपका भरोसा मेरे ऊपर है मैं उस हैसियत पे रहूंगा और उस खिदमत को करूंगा। हमारा मुल्क आजाद हुआ, सियासी तौर पर एक बोझा जो बाहरी हुकूमत का था वो हटा, लेकिन आजादी भी अजीब अजीब जिम्मेदारियां लाती है और बोझे लाती है। अब उन जिम्मेदारियों का सामना हमें करना है और एक आजाद हैसियत से हमें आगे बढ़ना है और अपने बड़े बड़े सवालों को हल करना है। सवाल बहुत बड़े हैं, सवाल हमारी सारी जनता के उद्धार करने के हैं। सवाल है गरीबी को दूर करना, बीमारी को दूर करना, अनपढ़पने को दूर करना, और आप जानते हैं कितनी और मुसीबतें हैं जिनको हमें दूर करना है। आज़ादी महज एक सियासी चीज नहीं है। आज़ादी जब ही एक ठीक पोशाक पहनती है जब उससे जनता को फायदा हो। आजकल हमारे सामने ये आर्थिक और इक्तिसादी सवाल बहुत सारे हैं, बहुत काफ़ी जमा हुए हैं। इस हमारे गुलामी के ज़माने में बहुत कुछ इस लड़ाई की वजह से, बड़ी लड़ाई जो हुई है दुनिया में और उसके बाद जो हालात दुनिया में हैं उसकी वजह से ये सवाल जमा है। खाने की कमी है, कपड़े की कमी है, और ज़रूरी चीज़ों की कमी है, और ऊपर से चीज़ों के दाम बढ़ते जाते हैं जिससे जनता की मुसीबतें बढ़ रही हैं। हम कोई इन सब बातों को जादू से तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारा पहला फर्ज है कि इन सवालों को लेके जनता को आराम पहुंचाएं और पूरी तौर से उन सवालों को हल करने की भी कोशिश करें। लेकिन इसके पहले एक और सवाल है, और वो यह है कि सारे हमारे देश में अमन हो, शांति हो, आप उसकी लड़ाई झगड़े बिल्कुल बंद हो, क्योंकि जब तक लड़ाई झगड़े होते हैं उस वक्त तक कोई और काम माकूल तरीके पे नहीं हो सकता। तो ये पहली मेरी आपकी दरख्वास्त है, और आज जो हमारी नई गवर्नमेंट बनी है उसने भी आज ये पहली दरख्वास्त हिंदुस्तान से की है, जो आप शायद कल सुबह के अखबारों में पढ़ें। वो ये कि फौरन ये जो आप उसकी ना इत्तेफाकी, आप उसके झगड़े हैं वो बंद किए जाएं, क्योंकि आखिर अगर ना इत्तेफाकी है भी तो किस तरह से वो हल होगी इन झगड़ों से और मारपीट से। आपने देख लिया कि एक जगह झगड़ा होता है, दूसरी जगह उसका बदला होता है, उसका कोई अंत नहीं है। और ये बातें कुछ आज़ाद लोगों को जेब नहीं देती हैं, ये गुलामी की बातें हैं। हमने कहा कि हम प्रजातंत्रवाद इस देश में चाहते हैं। प्रजातंत्रवाद में फिर डेमोक्रेसी में फिर इस तरह की बातें नहीं होती। हमें जो सवाल हों आप उसमें सलाह मशवरा करके एक दूसरे का ख्याल करके उनको हल करना है और उन पर अमल करना है अपने फैसले पर। इसलिए पहली बात तो यही है कि हमें फौरन अपने सारे इस किस्म के झगड़े बंद करने हैं। फिर फौरन ही हमें वो बड़े आर्थिक सवाल उठाने हैं जिनका मैंने अभी आपसे जिक्र किया। हमारी जमीन, बहुत सारे प्रांतों में जो जमीन का कानून है आप जानते हैं वो कितना पुराना है, कितना उसका बोझा हमारे किसानों पर रहा है, और इसलिए अरसे से हम उसके बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो जमींदारी प्रथा है उसको भी हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको भी जल्दी हमें करना है। और फिर हमें सारे देश में बहुत कुछ आर्थिक तरक्की करनी है, कारखाने खोलने हैं, घरेलू धंधे बढ़ाने हैं, जिससे देश की धन दौलत बढ़े, और बढ़े इस तरह से नहीं कि थोड़े से जेबों में जाए, बल्कि आम जनता का उससे फायदा हो। आप शायद जानते हो कि हमारे बड़े बड़े स्कीम हैं, बड़े बड़े नक्शे हैं हिंदुस्तान में, बहुत सारे, कि जो नदियां और दरिया हैं उनके पानी के ताकत से फायदा उठाकर हम नई नई ताकतें पैदा करें, बड़ी बड़ी नहरें बनाएं और बिजली पैदा करें, जिस ताकत से फिर हम और बहुत काम कर सकें। इन सब बातों को हमें चलाना है, तेजी से चलाना है, क्योंकि आखिर में देश का धन दौलत इसी से बढ़ेगा और उसके बाद जनता का उद्धार होगा। बहुत सारी बातें मुझे आपसे कहनी है, बहुत सारी बातें मैं आपसे कहूँगा, लेकिन आज सिर्फ ये 2-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि मुझे आइंदा मौके होंगे कि आपसे जो जो हम काम कर रहे हैं, जो जो हमें हमारे दिमाग में विचार हैं वो मैं पेश करूं, क्योंकि प्रजातंत्रवाद में हमेशा जनता को मालूम होना चाहिए कि क्या हम करते हैं, क्या हम सोचते हैं, उसको पसंद करना चाहिए, उसी की सलाह से सब काम होने चाहिए। इसलिए ये जरूरी है कि आपसे हमारा संबंध बहुत करीब का रहे। आज अधिक मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं ये जरूर चाहता था कि आज के शुभ दिन कुछ न कुछ आपसे कहूं,
कुछ न कुछ आपसे एक संबंध, पुराना संबंध ताजा करूं, इसलिए मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ। फिर से मैं आपको इस शुभ दिन की मुबारकबाद देता हूं, लेकिन उसी के साथ आपको याद दिलाता हूं कि हमारी जिम्मेदारियां जो बनी हैं, इसके माने हैं कि हमें आइंदा आराम नहीं करना है, बल्कि मेहनत करनी है, काम करना है एक दूसरे के सहयोग के साथ, तभी हम अपने बड़े सवालों का हल कर सकेंगे। जय हिंद। सरकशी का परचम लहरा दो, गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा